Good morning, students. Today we are going to start with uh, first chapter, that is fundamentals of partnership. Okay, this is chapter number 1 of partnership. Now, here we are going to understand partnership is an agreement formed under section 4 of Partnership Act 1932. Okay, as per this act, it is an agreement between two or more than two persons to carry on a legal business for the purpose to earn profits. Okay, this business can be carried on by all or anyone acting on behalf of others. ओके, तो या तो एक इंडिविजुअल लेके कर सकता है इस बिजनेस को, या फिर जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारे मिलके इस बिजनेस को कैरी आउट कर सकते हैं। तो ये आपके पास पार्टनरशिप के है डेफिनेशन। अब इसके हम फीचर्स पे आ जाते हैं। पहला इसका एस्पेक्ट है दैट, डेफिनेशन से ही समझ लेते हैं कि फर्स्ट इज दिस बिजनेस इज कैरिड बाय टू और मोर देन टू इंडिविजुअल्स। ओके, तो ये पहला फीचर है आपके पास। तो डेफिनेशन itself has stated that this business is to be carried by two or more than two individuals। तो इसमें मिनिमम हमारे पास कितने मेंबर्स होते हैं? मिनिमम टू, मैक्सिमम हमारे पास 50 होते हैं एज पर कंपनीज एक्ट 2013। ओके, अंडर सेक्शन 464। तो ये अब एक नया चेंज आ गया। पहले आपके पास होता था मैक्सिमम 10 मेंबर्स इन केस ऑफ बैंकिंग एंड 20 इन केस ऑफ नॉन बैंकिंग। अब वो चेंज करके आपके पास 50 मेंबर कर दिए एज पर कंपनीज एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 464।
सेकंड आपके पास है फीचर इसका, इट इज एन एग्रीमेंट। ओके, ये कोई लीगल कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं होता है। ये एग्रीमेंट है बिटवीन टू और मोर देन टू इंडिविजुअल्स टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटी। ओके, इसमें कोई लीगल एस्पेक्ट्स नहीं है आपके। लीगली रजिस्टर करवाना कोई कंपलसरी नहीं है इस एग्रीमेंट को। आप करवा भी सकते हो, नहीं करवाते हो, उसके रेप्रिकॉशंस, प्रोज एंड कॉन्स हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन what type of business and what type of agreement you are carrying on, whether you want this agreement to be registered under law or not. But this is an just an agreement, okay, not a legally applicable or legally compulsive agreement which you have to implement in all conditions. तो ये कोई ऐसा लीगल एग्रीमेंट नहीं है या लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। ओके, थर्ड फीचर इज दैट द business has to be carried on for earning profit. So, whatever the agreement is being done, it is done to carry out the business, which is for the purpose of earning profit, not for any social cause. Okay, तो प्रॉफिट मोटिव मेन है जिसके लिए ये बिजनेस हम कैरी आउट कर रहे हैं। दैट इज द another important aspect of this agreement. Okay, another important feature of this agreement is that sharing of profits. All the partners who enter into this agreement, they agree to share profits in a particular proportion. And if they are nothing is being said about how to share the profits, then they will share the profits in the profits in equal ratio. Okay, either they are sharing profits equally or they are determining a certain profit sharing ratio or capital ratio in which they are going to distribute the profits that has been earned by the company. Okay. Then next is your the relationship between partners is of relationship between partners is of principal and agent. Okay. So another important thing is that they have a mutual agency relationship. Principal and agent means whatever the decision is being taken by the principal, that is applicable on the agent, or whatever the decisions are being taken by the agent, that is applicable on the principal, mean that they are mutually binding each other with the agreements they are carrying out with any third party or amongst themselves or with the partnership firm. So जो भी एग्रीमेंट्स होंगे वो एक दूसरे के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। अगर कोई प्रॉफिट्स होते हैं तो दोनों उसका बेनिफिट एंजॉय करेंगे, और अगर लॉसेस होंगे तो दोनों उसको बियर करेंगे। ये नहीं हो सकता है कि one person says that you have taken the decision, so you are responsible for the losses, and in case profits we will share। ऐसा नहीं होगा। प्रॉफिट्स हुए हैं तो दोनों सारे मिलके शेयर करेंगे, लॉसेस हुए हैं तो सारे मिलके शेयर करेंगे। और जो एग्रीमेंट्स किसी ने भी अंडर साइन किए हैं वो पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर, पूरी फर्म के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। So the relation between the partners is of principal and agent. Okay.
Another important feature is business is carried on by all or by anyone on behalf of all. मतलब ये बिजनेस चाहे तो सारे मिलके चला सकते हैं या एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दी एंड ही इज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ द रेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो ये आपके पास एक इम्पोर्टेंट फीचर, ये सारे फीचर्स आपके इस डेफिनेशन में ही इंक्लूडेड हैं जो हमने ऊपर लिखी थी। एंड लास्ट वन इज दैट इट हैज नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। मतलब बिजनेस एंड इट्स पार्टनर आर वन एंड द सेम थिंग। अगर बिजनेस डूबता है तो पार्टनर्स भी लॉसेस में जाएंगे, अगर पार्टनर लॉसेस में जा रहे हैं तो मतलब बिजनेस भी लॉसेस में जाएगा। इस के कारण बिकॉज इट इज नॉट अ सेपरेट लीगल, इट हैज नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, thus there is unlimited liability of the partners towards the towards the partnership firm। अगर लॉसेस बियॉन्ड देयर इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल कैपेसिटीज होते हैं, दे हैव टू बियर दोस लॉसेस। ओके, एंड वी कांट से दैट वी हैव ओनली limited participation in this business. No, because business and the partners are one and the same thing। That is what they are saying, that it has no separate legal existence। अगर बिजनेस खत्म हुआ तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, लॉसेस में चले गया तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरह कि जिसमें मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो बट द बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। दैट इज नॉट हैपनिंग इन केस ऑफ पार्टनरशिप। ओके, तो ये पार्टनरशिप में फॉर्म ऑफ बिजनेस में सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। ओके, अब इसके आगे एक और फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसे हम कहते हैं एल एल पी। ओके, इसे कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ओके, सो दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस came into existence under LLP Act 2008, which states that LLP is a body corporate। ठीक है, दूसरा, एक तो क्या है, ये बॉडी कॉर्पोरेट है। दूसरा, इट हैज अ लीगल एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम इट्स members। That is, it has a perpetual existence। ओके, और perpetual succession जो भी आप कह लीजिए। ओके, मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो
but the company will continue to exist. Fine. क्योंकि अब इसकी लिमिटेड इसका लीगल एग्जिस्टेंस है, सो लायबिलिटी ऑफ द members is limited. Liability of the members is limited to the extent of investment. ओके, ये आपके पास है। तो बॉडी कॉर्पोरेट है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, और इनकी जो लाइबिलिटीज है वो लिमिटेड हैं। सो मेंबर्स के आने और जाने का एलएलपी की एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपके पास है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ओके, अब चलते हैं हम इससे आगे थोड़ा सा। हमारे पास नेक्स्ट एस्पेक्ट है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? एन एग्रीमेंट अमंगस्ट पार्टनर्स टू कैरी आउट functioning of a business on certain terms and conditions। ठीक है, to carry out functioning of a business on certain टर्म्स एंड कंडीशंस, ये आपके पास पार्टनरशिप डीड है। ओके, तो पार्टनरशिप डीड में आपका लिखा होगा कि हु आर द पार्टनर्स, नेम्स होंगे, उनके एड्रेस होंगे, उनकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट होगी, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग होगी, रेशियो बताई होगी आपको, फिर सारा कुछ उसका एक्सप्लेन्ड होगा। बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? इन द एब्सेंस of partnership deed, ठीक है, what rules be followed? तो पहला क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, नील। ओके, सेकेंड रूल क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं देंगे। थर्ड रूल क्या है? कमीशन टू पार्टनर्स नहीं देंगे। ओके, सैलरी टू पार्टनर्स नहीं देंगे। ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कितना देंगे? 6% पर एनम।
प्रॉफिट शेयरिंग, अब कोई बात नहीं बोल रहे हैं हम कि कैसे प्रॉफिट शेयर करना है, क्या करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड amongst पार्टनर। ठीक है जी, तो ये आपके पास है रूल्स, एक इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसको हम पहले समझ लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डिफरेंस ढूंढ लेते हैं। कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है। ओके, तो पहला तो है कि इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है जी, और ये इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर calculation of operating profit। ठीक है जी, तो नेट प्रॉफिट जो डिस्क्लोज होता है उसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। फाइन, अब सॉरी, आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, हम ऑपरेटिंग नहीं करेंगे, आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, मतलब ये कहाँ से है, आफ्टर ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट इन पी एंड एल अकाउंट। ओके, सेकंड है हमारे पास, it is used to calculate profit or loss। Its purpose is to calculate how much profit is to be distributed amongst partners। ठीक है जी, और इसमें क्या है, here expenses are treated as charge। ठीक है, here expenses are treated as appropriation। Okay, next,
तो ये आपके पास है। फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस, आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन है, ये तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से बनता है, ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग नहीं बनाया जाता है। ओके, यहाँ मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो होता है। ओके, हेयर मैचिंग प्रिंसिपल इज फॉलोड। ओके, यहाँ मैचिंग प्रिंसिपल is not followed। तो ये आपके पास कुछ एस्पेक्ट्स हैं इसमें कि प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या फ़र्क है। तो एप्रोप्रिएशंस कोई कंपलसरी नहीं है, चार्ज आपके लिए कंपलसरी है। ओके, अब हम चलते हैं और देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। ये आ गया नेट प्रॉफिट, नेट लॉस होगा तो इधर आएगा, नेट प्रॉफिट यहाँ पे आ गया, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है। यहाँ लिखते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और यहाँ लिखा जाएगा आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स, ओके, और फिर जनरल रिजर्व, एंड देन जो बाकी बच गया ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट अगर प्रॉफिट है, ओके। फिर यहाँ से हम आगे बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। तो पहले देख लेते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वो होते हैं जिसमें आपकी जो कैपिटल है जो आपने इंट्रोड्यूस की थी इनिशियली वो सेम रहती है। ओके, वो चेंज नहीं होती। तो हम यहाँ पे दो अकाउंट्स बनाते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन,
एडिशनल कैपिटल, यहाँ विड्रॉल्स। विड्रॉल और ड्राइंग्स में फ़र्क है। ड्राइंग्स तो आप शॉर्ट टर्म के लिए निकालते हो, फिर उस पर इंटरेस्ट ऐड ऑन करके वापस दे देते हो बिजनेस को। मगर विड्रॉल्स आपके परमानेंट होते हैं, मतलब आपने कैपिटल को डिक्रीज कर दिया है बिजनेस से। ओके, तो यहाँ क्या आ गया आपके पास, बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, ये आपके पास है कैपिटल अकाउंट। फिर इसके बाद हम बनाते हैं करंट अकाउंट। जो भी चेंजेस हैं यहाँ एडजस्ट किए जाएंगे। तो अगर करंट अकाउंट के बैलेंसेस हैं तो हम क्या लिख देंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर सैलरी टू पार्टनर्स, ये वाला एलिमेंट यहाँ आ गया। कमीशन टू पार्टनर्स, फिर P&L एप्रोप्रिएशन। और यहाँ क्या आ जाएगी आपके पास, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ओके। और बच क्या जाएगा, बैलेंस कैरिड। So this is how we are going to prepare fixed capital account. तो आज के लिए इतना काफ़ी है। Next we will do in next lecture. Thanks.